Anvita ma'am, good evening. Good evening, sir. Good evening. We are just waiting for 2-3 more minutes so that members थोड़ा सा वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 5-7-10 मिनट इधर उधर हो जाता है, तो वी आर जस्ट वेटिंग कि सम मोर मेंबर्स may join, तो फिर 2-3 minutes we'll be starting. Sure, sir. Sure. Volume. Very good evening, friends. It is really a great occasion that today we have amongst us Anvita Chatwal ma'am, whose Mentor Diet Clinic. She will be guiding us all members about the myths and facts of food. Because today, as we can see on WhatsApp, welcome ma'am, Anvita ma'am, welcome. Good evening, sir. Thank you so much for inviting me. Thank you. As we can see that on WhatsApp, there are many universities, there are many institutions, many schools, colleges. Everyone is guide, everyone is mentor. So we need actual guidance, and who could be the better person than gorgeous Anvita Chatwal ma'am, who is by herself leading by example and mentoring many families across not only Ludhiana, not only Punjab, but at India level. I had a talk with her few days back. She was on a trip to Mumbai, so we delayed the session for a few days. Thank you, fam, for sparing your time. The pleasure is all mine, sir. In this prestigious forum, you've invited me. Thank you so much.
Thank you, ma'am. Whatever the mind of a man can conceive and believe can be achieved. Whatever the mind of a man can conceive and believe can be achieved. मैम ने कंसीव किया, बिलीव किया, being a mentor of a diet clinic, so she did it. We had a very interesting session 3 years back at Rotary. Many of us conceived the idea of being a chartered accountant. We conceived it, we believed it, and we achieved it. At the start of Corona, I had conceived the idea that I have to lose 10 kgs. And within 1 year, I could lose 10 kgs. Somehow, मैम से मैं आगे आने वाले टाइम में मैं पूछूंगा, क्योंकि मेरे पैरों में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो जिस करके मुझे वो थोड़ा सा वॉक, आई यूज्ड टू वॉक 10-15 किलोमीटर्स डेली, तो उसकी वजह से मेरा वो डिसकंटिन्यू हो गया, तो थोड़ा सा वो इशू चल रहा है. Last month we had a physical meeting, very first meeting, physical meeting at Bar Multipurpose Hall, Income Tax Office, Ludhiana, on search and survey proceedings covering section 68, 69, 69A, 69B, 69C, and 69D, read with sections 115 BE. And the speaker was our advocate Sudhir Sehgal ji. Around 70 participants were there and members were very enthusiastic, and we are having a physical meeting last Friday of the month on a topic. Rajiv Kaushal ji would be the speaker, so gear up for that. And we are having a session on Monday also on AIS. There was a demand from members because it has changed, so we'll be planning that will be on the Zoom platform only. Now I request CA Arsh Gaudji or CA Sakshi Mahajan, if any one of them is there, to kindly guide the members about the conduct of the meeting. Then CA Megha Kalra will introduce our worthy speaker, Anvita Chatwal ji. Ji, Sakshi ji. Good evening, everyone. On behalf of the entire DTBA team and the members, we extend a very hearty welcome to Anvita ma'am. As all of us are now quite well aware with the proceedings of the Zoom, still to reassure, we'll be using the chat option to put in our queries, and the queries shall be taken, as Anvita ma'am says, either during the middle of the session or at the end of the session from the chat box. And the rest is in any case, if anyone wants to raise a question, they can raise their hand and we'll give them the opportunity to speak also. And now I request CA Megha Kalra ma'am to kindly give a formal introduction for our today's worthy speaker. Over to Megha ma'am. Thank you, Sakshi. A very good evening to all. Myself, CA Megha Kalra, and I am going to introduce our today's guest speaker and famous dietitian, Mrs. Anvita Chatwal. She has attained a fellowship in applied nutrition and has been propagating healthy living for a decade. She is a certified nutritionist and has done postgraduate diploma in nutrition and dietetics. Additionally, she has the postgraduate diploma in clinical nutrition. She is an expert in dietetics, diet counseling, public nutrition, and institutional food management. Her forte lies in treating illness, including obesity, diabetes, PCOS, PCOD, and thyroid. Her rich experience in the last 10 years has helped turn around the lives of over 10,000 people over the world. A daughter to an army officer, she has an inherent drive of discipline and dedication. This is what she brings to the table. She is also a mother of 2 boys, married to a businessman. She undoubtedly understands the busy schedule and the commute time that take a toll on eating habits. On behalf of TTVA team, I welcome you, ma'am.
Thank you, Megha. Ma'am, the stage is all yours. I'd like to brief you about the District Taxation Bar Association, Direct Taxes Ludhiana. We are around 40 years, 41 years plus organization of chartered accountants, advocates, and income tax practitioners, mainly catering to catering all over the Punjab and India, but members are mainly from Ludhiana, and we do guide our assessees and deal with the income tax department on various issues that are relating to the profession or to our assessees, and if there are any grievances, that also we take up. So on a lighter note, अगर आपकी भी कोई taxation के issues हो कभी, तो you can contact any of our members. They would like to give a complimentary service. The stage is all yours, ma'am. Welcome. Thank you so much, Jasminder ji, and thank you everybody. Namaskar, I am Anvita Chhatwal, your nutritionist, and thank you for inviting me in this forum again. It's my pleasure. And well, talking about me, I have been in this field since last 14 years, trying to help people change their life towards a healthy lifestyle across the world, and fortunately have been able to achieve this goal. And I love to see people once, after meeting me and taking my guidance, the way they change their life, their weight issues are sorted out, their PCOD problems, their thyroid, diabetes reversal happens. So it is always, I love my profession, and I love the way the people transform their life towards betterment, and trying my level best to continue with it. So today, as discussed, the topic which we are talking about is the myths which we have in food. Aajkal, because of the food industry, what I would like to say that eating food or judging food has really become the trend. Eating food with some guilt has come up, and always judging our food has come up in our minds, which probably is because of certain advertisements, certain influencers. So all that is happening, which has really confused the general public about the food. And I would like to say that we should be focusing on the basics. So coming to my topic, the very first question, I would like everyone to be, putting their screens on so that I can see everybody and we can have a nice, nice communication. So everyone, request you all to put on your cameras, and whomsoever I would be asking questions, it would be nice if you can answer that. So it becomes very, very interactive and we all enjoy it. It doesn't become a boring session, right? So very first question which we all have, खाना खाना खाना, सब खाने के बारे में बात करते हैं, अच्छा खाना खाना है. So what is good food? The very first question. Sakshi, let's start with you. Sakshi Mahajan, tell us, what is good food all about? क्या है ये अच्छा खाना? Ma'am, the moment you mentioned this question, I could think of Golgappe. So, so अच्छा खाना means Golgappe. हाँ, सबका individual है. हर किसी को अपना खाना अपना टेस्ट के हिसाब से सबको कुछ अच्छा लगता है, right? So who's this? Okay. So I would like to ask Surinder Singh sir. Sir, आपका कैमरा नहीं on, so हम आपको देखना चाहेंगे. If you can hear me, sir. Okay, maybe he's busy. Mr. Arvinder Singh. Yes, sir. So tell us, आपके हिसाब से क्या है अच्छा खाना? Arvinder ji,
आई थिंक जिनके कैमरास ऑन है आप उनसे पूछ लीजिए। मनिंदर Okay, सर, तो आपसे ही पूछते हैं। जसमिंदर सर, आप बताइए कि व्हाट डू यू थिंक, अच्छा खाना क्या है आपके लिए? मैम, व्हाट आई पर्सनली फील इज के मेरे लिए जो अच्छा खाना है वो जो मुझे स्वादिष्ट लगे और मुझे जो कैलोरीज दे, एनर्जी दे, लेकिन कोलेस्ट्रॉल या फैट्स या जो चीज मेरी बॉडी को नहीं चाहिए वो ना दे। दैट शुड बी द बेस्ट फूड। हेलो। Okay, so now I come to this कि अच्छा खाना, again it depends person to person, age to age, gender, and which countryside you are staying, the season, इस सब पे हम लोग के वेरिएट होता रहता है कि अच्छा खाना क्या है। पर आइडियली अगर आप मुझसे पूछें, एक अच्छा खाना वो होता है जो आपको ABC से दूर रखे। ABC मतलब एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये चीजें आपको ना हो। खाना खाने के बाद आप खाने का ना सोचें, राइट? वो खाने के बाद आपके पूरे दिन में एनर्जी रहे, राइट? खाना खाने से आप अंडर ईट ना करें, आप ओवर ईट ना करें। सो ये सब चीजें अगर आप खा रहे हैं और आपके खाने में ये सब चीजें हैं, दैट मीन्स वो सही खाना है। एक सही खाना, जैसे कि अब आजकल जस्ट एन एग्जांपल, समोसा सबका फेवरेट है, हम सब नॉर्थ इंडियंस का फेवरेट है। अगर वो हम समोसा जो फ्राइड होता है वो खाते हैं, वी आर ऑल सेटिस्फाइड। पर वही समोसा अगर हम लोग एयर फ्रायर में बना हुआ खाएंगे, वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, राइट? हम वो 2, 3, 4 खा लेंगे। क्यों? एक तो हमारे दिमाग में होता है कि ठीक है ये हेल्दी है, इसमें ज्यादा फैट नहीं है, इसमें ज्यादा कैलोरीज नहीं है, तो हम 2, 3, 4 खा लेंगे। पर उसको खाने के बाद भी हम लोगों में वो चीज रहती है कि सेटिस्फैक्शन नहीं होती। सो खाना वो होना चाहिए जो आपको सेटिस्फाई करे, आपकी बॉडी के लिए हेल्दी रहे, आपकी बॉडी को तंग ना करे, राइट? एंड प्लस आपको बार बार खाने के बारे में सोचने को इंसिस्ट ना करें। सो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके खाने में 3 चीजें होनी चाहिए, द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दैट इज योर कार्ब्स, योर फैट्स एंड योर प्रोटीन्स। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग कुछ चीजों से डरने लग गए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी फैट के बारे में। फैट बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। क्या कहेंगे मनिंदर कौर जी, आप बताइए, क्या फैट जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? Yes, I do feel because somewhere fats से हमें energy मिलती है, but not to like I'm already fat, so I should not comment much. But yes, I do believe that there should be a balanced diet, and we should keep a check on what we are eating. Like maybe fat is definitely required, but to an extent, and measure करके. Otherwise, you can be like me, like as I am fatty. You're fine. So you. Okay, so I will come there. Thank you. Maninder ji, you know what? Yeah. Fat is very very important to us because it has a fatty chain acid. ये एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, you know, so it is very important कि हम वो फैट खाएं ताकि वो फैटी चेन एसिड हमारी बॉडी में बने। हमारी जो सेल्स हैं, हमारे जो टिश्यूज में मेम्ब्रेन होती है, वॉल होती है, वो किससे बनती है? फैट से। अगर हम वो फैट नहीं खाएंगे तो वो हमारी हेल्दी नहीं होएगी। If we talk about cholesterol in our body, if we talk about triglycerides in our body, if we talk about phospholipids in our body, this all is made by fat. If we talk about sharp brain, if we talk about good heart, if we talk about good eagle eye, if we talk about basic building agent, it is fat which helps you. So it is very very important कि हम लोग अपनी डाइट में फैट रखें। अब कितना फैट पोर्शन हमारी डाइट में रहना चाहिए, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। मतलब खाना है पर कितना खाना चाहिए? सो द आंसर टू दिस इज कि अगर आप 2000 कैलोरीज हर दिन की खा रहे हैं तो दैट शुड बी अराउंड 20 to 35% आपका उसमें से फैट होना चाहिए। सो वी शुड नॉट बी रेजिस्टिंग फैट। It is important for us to take the fat.
It's because of this fat कि हमारी बॉडी में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एब्जॉर्ब होता है. So this fat is important in our platter on daily basis. Now, fat क्या है, कैसा फैट खाएं हम लोग जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो. So if I answer that question, in your fat you should be having nuts, you should be having seeds, you should be having egg, you should be having chicken, fish, milk, rice, potato, butter, desi ghee, banana, dates, paneer, पिन्नी जो कॉन्कोशन, एक कॉन्कोशन है. हम लोग आजकल पिन्नियों से हम सब डरते हैं, पंजीरी से हम लोग डरते हैं, पर अगर आप देखें पास्ट हिस्ट्री में या अभी भी जो हम लोग बनाते हैं उसमें बहुत सारे हर्ब्स जाते हैं, उसमें आपका जो आटा जाता है, जो नट्स जाते हैं, जो सीड्स जाते हैं, और जो उसमें कॉन्कोशन बनता है, दैट हेल्प्स यू फॉर अ बेटर हेल्थ. So we need this, your dahi, your coconut oil, your olive oil, your sesame oil, they all have fat and we all need it at a certain proportion. So never say no to fat. Second is carbs. Carbs भी लोग बहुत कहते हैं कि नहीं carbs नहीं चाहिए. We have Minnie. Hi Minnie. So Minnie, tell us, do you know something about carbs? Do you like carbs and do you think carbs are required in our daily diet? अनम्यूट करना. अनम्यूट कर लो मिन्नी जी, अनम्यूट कर लो. हाय हाँ जी. मैं बहुत लेमैन हूँ, बट इतना मुझे मालूम है कि जितने हम कार्ब्स लेते हैं, जैसे व्हीट में चपाती हुई, राइस, ये सब भी बहुत इसेंशियल है, बट वही सेम प्रोपोर्शन का है कि पोर्शन साइज हमें अपना मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ कार्ब भी शायद अच्छा नहीं रहता. कार्ब चाहिए भी जरूर बॉडी को. एज अ लेमैन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. नहीं मिन्नी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. एंड बिलीव मी, कोई भी यहाँ पे लेमैन नहीं है, because we all are eating food on every day and we know what is good for our body, what is not bad. इतने सालों में हम सब ये जजमेंट कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, राइट? So you are absolutely right. Carbs are the main source of energy for our body. They are the fuel for our body. They are very important for our again brain, for our kidney, for our heart, for muscle, for our nervous system, and in fact they help you to regulate the blood sugar levels. They improve the insulin resistance. They are the macromolecules को build up करते हैं हमारे. in fact अगर हम लोग कार्ब्स नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी प्रोटीन और फैट से काम करवाएगी, और जो बेचारे प्रोटीन और फैट में जो दूसरा काम करना होगा उसको वो काम छोड़ के फैट का कार्ब्स का काम भी करना पड़ेगा. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम कार्ब्स लें. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, कार्ब्स कितने लें? अगेन, अगर एक एवरेज लोग 2000 कैलोरीज लेते हैं आप लोग एक दिन में, सो यू नीड टू टेक 45 to 65% उसमें आपके कार्ब्स होने चाहिए. गुड कार्ब्स क्या हो सकते हैं? गुड कार्ब्स हो सकते हैं आपकी रोटी, आपका राइस, आपकी ब्रेड्स, आपके काले चने, आपके सफेद चने, आपकी लेंटिल्स, आपके फ्रूट, आपकी ब्रेड, आपके ओट मील्स, ये सब हैं आपके गुड कार्ब्स. And you need it. You need at least 900 to 13 calories of carbs every single day. If you are an average person with no medical issues, this is very, very important. Next, very important, जो सब फैन है इसके, जो थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट है, एंड वो है प्रोटीन, राइट? सब कहते हैं हमारी डाइट में प्रोटीन जरूर होना चाहिए. कार्ब्स ना हो, फैट ना हो, पर प्रोटीन जरूर होना चाहिए हमारी बॉडी में, राइट? सो आई थिंक वो तो रंजना, वी हैव रंजना. हाय रंजना, हाउ आर यू? Hi, I'm good. Thank you. Okay, Ranjana. So you tell us, what about protein? What do you think about protein? प्रोटीन जैसे मतलब वो कहते हैं ना प्रोटीन शेक, या वो प्रोटीन होना चाहिए. तो एक बार लाइफ में मैंने क्या किया, वो प्रोटीन का मिथ सुन के ना आई स्टार्टेड हैविंग प्रोटीन एक्स. वो मैं लेके आई और मैं उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम किया. लाइफ में मेरे कभी पिंपल्स नहीं, मतलब कभी मेरे को पिंपल्स का प्रॉब्लम नहीं हुआ, but I got pimples, you know, after having that. So one day I was discussing with one of my clients कि मैं ऐसे मतलब we were started discussing about diet. तो मैं क्या, मैं प्रोटीन एक्स ले रही हूँ.
देन ही टोल्ड मी कि नो डोंट टेक प्रोटीन एक्स, प्रोटीन ऐसे नहीं लेना चाहिए, मतलब healthy diet is a balanced diet which include all micro and macro nutrients. तो एक ही हम न्यूट्रिएंट पे फोकस कर देते हैं ना, तो वो खराब करता है बॉडी को, जितना मैंने आज बिल्कुल तक बिल्कुल किया है। बिल्कुल, क्योंकि प्रोटीन डब्बों में आता है और फैक्ट्री वाले खूब बेचते हैं और सब लोग खूब लेते हैं और बहुत एड्स होती है और एक लीन बॉडी, एक मस्कुलर बॉडी दिखाई जाती है, बोला जाता है लेट्स हैव द प्रोटीन, लेट्स टेक मोर एंड मोर स्कूप्स ऑफ प्रोटीन। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन उन सब लोगों को पूछती हूँ, मसल प्रोटीन हेल्प्स यू टू मेक मसल मास, तो वो एक मिथ आई थिंक, जो आई थिंक आप no. उसको ज्यादा एड्रेस कर सकते हो। See, protein again is a macronutrient. That means it is very, very important for our body. You need to take at least 0.8 grams of protein per kg of your weight on daily basis. That is important. Yes, you are right. And protein is very, very important for our body. If we see protein is a building block of the life, and it has a chain of amino acids, which helps to build, repair the tissues, the cells, build up your muscles, एंड आपके ब्लड में जो क्लॉटिंग होनी है, जो एप्रोप्रिएट क्लॉटिंग होनी है, उसको हेल्प करता है, आपके इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, आपके हार्मोन एंजाइम्स को ठीक करता है। प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। पर मैं बस ये चीज बोलती हूँ, पहले जमाने में भी दारा सिंह थे ना, दारा सिंह ने कभी भी प्रोटीन शेक नहीं खाए, फिर भी बहुत अच्छे मसल्स थे, एंड दे हैड अ नाइस लवली लॉन्ग लाइफ एंड दे वर डूइंग वेरी वेरी वेल। सो प्रोटीन सिर्फ इन डब्बों में नहीं है, प्रोटीन बड़ी चीजों में है, हर चीज में है। भगवान ने इतनी खूबसूरती से हर चीज बनाई है कि उसमें कार्ब्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। इट्स जस्ट वी नीड टू स्टार्ट हैविंग इट, गेटिंग बैक टू बेसिक्स। नाउ माय सेकंड मिथ इज, जो प्रोटीन है वेजिटेरियंस के लिए है ही नहीं। क्या है, फैक्ट है कि मिथ है? मिथ है। Myth. Yes, yes, absolutely. Minnie ji, myth hai. myth है। Yeah, so protein is available for vegetarians. They can have protein in everything. चाहे वो पनीर है, चाहे वो टोफू है, चाहे वो आपके लेंटिल्स हैं, चाहे वो आपके राजमा हैं, काले चने हैं, आटा, अमरंथ का आटा, राजगिरी आटा, जो मतलब हर जगह आजकल बहुत इजीली अवेलेबल होता है, उसमें प्रोटीन होता है। किनुआ, आजकल ब्रेड बनती है स्प्राउट्स की, उसमें प्रोटीन होता है, स्प्राउट्स में सेल्फ प्रोटीन होता है, सोया मिल्क में प्रोटीन होता है, ओट मिल्क में प्रोटीन होता है, ओट्स में प्रोटीन होता है, चिया सीड्स में प्रोटीन होता है, नट्स में जैसे पिस्ता हो गया, आपका बादाम हो गया, पीनट्स हो गए, आपके सीड, सनफ्लावर सीड, हेम्प सीड, आपके सोयाबीन सीड्स, इन सब में प्रोटीन होता है। इवन तक की सब्जियों में होता है, सब्जियां जैसे कि आपकी ब्रोकली हो गई, आपके मटर हो गए, आपकी पालक हो गई, भिंडी हो गई, स्वीट पोटैटो हो गया, इन सब में प्रोटीन होता है। फ्रूट्स जैसे बनाना हो गया, गुआवा हो गया, इन सब में प्रोटीन होता है। पर अनफॉर्चुनेटली ये सब बड़ी आसानी से मिल जाता है, और हम ह्यूमंस को क्या होता है कि जो चीज आसानी से मिलती है, इट इज नॉट वर्थ इट, कुछ तो मेहनत करनी चाहिए थी ना पाने के लिए। सो वी डोंट एक्सेप्ट इट कि नहीं, इन सब में प्रोटीन्स होते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, अगर आप अपने वेट के हिसाब से 0.8 ग्राम्स इनटू योर वेट, अगर उतना आप प्रोटीन ले रहे हैं, जो पॉसिबल है, अगर आप नॉर्मली ये सब चीजें खाएंगे, तो आपकी प्लेटर इज वेरी वेरी हेल्दी। सो दीज 3 macronutrients are good food and they should be taken in the most normal form. इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है ज्यादा, इसको ज्यादा प्रोसेस नहीं करना है। जो हमारे घरों में नॉर्मल जैसे पहले बनता आ रहा था, अगर उस तरीके से ही हम लोग लेंगे, देन नथिंग इज रॉन्ग, बल्कि आपकी बॉडी उसको अच्छी तरह एसिमुलेट करेगी, राइट? सो नाउ the next question which I have is, a body is healthy if it has an right weight. Is this a myth or a fact? Right weight? हाँ जी, अगर आपका वेट सही है, राइट आपका वेट जो क्या होता है? वजन आपका अगर वजन आपकी बॉडी का एप्ट है, तो आप हेल्दी हैं। आपके हाइट के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से। yes, it is a myth. Yeah, absolutely. So
We don't have, ज्यादा लोगों ने भी स्क्रीन नहीं ऑन की हुई, सब साइलेंट हैं, तो चलो. May I request the members to kindly put on the cameras? It Those who gives want to the, have an interactive session with me, please put on your camera. We'll have some good time. Yes, we have Mr. Subhash Bansal ji. Hello, sir. Good evening. Thank you so much. Thank you. Good evening. Thank you. So, sir, tell us, what is your point of view on this? That if somebody has the right weight, is that person healthy? What would you like to say on this? No, it's not the right way. It is a myth. Absolutely, absolutely. आजकल बहुत जोर दिया जाता है कि नहीं, राइट वेट होना चाहिए तभी आप हेल्दी है, वरना तो मतलब आपको बीमारियां लग जाएंगी, आपको कुछ हो जाएगा. It is not right, right? But frankly speaking, if you talk to me, what I say is, forget the bookish knowledge, forget this. I tell this to most of my clients. वो क्या कहते हैं, हमारी हाइट इतनी है, एज इतनी है, हमारा BMI ये कैलकुलेट कर, तो हमारे को तो इतने ही वेट का होना चाहिए. So what I tell them, don't measure like this. Measure it on the basis of your strength to weight ratio. आप में कितनी स्ट्रेंथ है अपने वेट के हिसाब से, वो बताता है कि आपकी बॉडी हेल्दी है कि नहीं है. फर्स्ट थिंग, हाउ डू यू जज दिस? आई विल जस्ट टेल यू एक एक्सरसाइज आप लोग अपने साथ करिएगा. अभी yeah, that's what I'm telling, how you can calculate it. It is very very easy. खड़े हो जाइए, खड़े होकर अपनी एक पैर पे, if you can see me, मेरा आएगा नहीं प्लीज. Okay, so I just tell you like this. आप जब खड़े होंगे तो खड़े होकर अपने टोज के ऊपर, सपोज आपका लेफ्ट टो के ऊपर अपना राइट टो रखिए, ठीक है, और उसको रख के 10 तक गिनिए. 1 2 3 4 10 तक. उसके बाद लेफ्ट फिंगर है वो रखिए और फिर 10 तक गिनिए. अगर आप वो कर लेते हैं, दैट मीन्स कि आपकी स्ट्रेंथ टू योर वेट रेशियो इज गुड. सेकेंड टेस्ट, आप खड़े होइए और खड़े होकर अपनी एक टांग को ऐसे रखिए, एंड इफ यू कैन काउंट टिल 10, और इसको ऐसे ही रख सकते हैं आप, फर्स्ट लेग एंड देन सेकेंड, ऐसे स्ट्रेट, काउंट टिल 10, एंड इफ यू थिंक यू कैन डू इट बिना हिले डुले, बिना कांपे हुए, बिना गिरे हुए, दैट मीन्स कि आपकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इज गुड. थर्ड चेक. मैम रिक्वेस्ट आ रही है कि ये दोनों जो आपने पहला टोज वाला और नीज वाला, ये दोनों दोबारा बता दें. कुछ मेंबर्स को शायद अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से हो जाएगी, वो पक्का करना चाहते हैं. चैट बॉक्स में देख रहा हूँ. ओके, मैं ऐसे दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अभी सीट के ऊपर पैर रख रही हूँ, तो ये हमारे यहाँ पे हमने ये रखा, इसके ऊपर मैं अपना दूसरी टांग रखूंगी यहाँ पे ही अपने टोज के ऊपर. एक्चुअली सर मेरा नीचे तक आ नहीं रहा, यहीं पे आप अपना दूसरा पैर रखिए और फिर 10 तक काउंट करिए. पहले राइट लेग के साथ, दूसरी बार लेफ्ट लेग के साथ. ऑन योर फिंगर, जो आपकी टोज होते हैं आपके, उसके ऊपर रखिए, 10 तक काउंट करिए, राइट एंड लेफ्ट दोनों के साथ करिए. अगर वो आप कर सकते हैं, दैट मीन्स कि यू आर हेल्दी. सेकेंड इज कि आप अपने नीज को अप करिए ऐसे, इफ यू कैन ऑल सी, और 10 तक काउंट करिए. पहले राइट लेग के साथ ऐसे करिए, उसके बाद लेफ्ट लेग के साथ ऐसे करिए. एंड इफ यू कैन डू दिस, दैट मीन्स आपका वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो इज गुड. थर्डली, टोज में जैसे आप बता रहे हैं, तो वी हैव टू कीप द फीट लाइक दिस, और इट शुड बी, हाँ, ये अपना फीट है, इसके टोज के ऊपर दूसरे टोज रखिए. नहीं मतलब फर्स्ट जो आगे वाला टो है, मतलब एडी ऊपर उठा के एडी या फ्लैट फुट में दूसरा टो रखना. एडी ऊपर उठा के सर, एडी ऊपर उठा के. राइट, आई गॉट इट. यू गॉट इट. Yeah. The third test is कि आप नीचे बैठिए चौकड़ी मार के, उसके बाद उठिए बिना किसी सपोर्ट के, बैठे और उठे. ठीक है, अगर वो बिना किसी सपोर्ट के कर सकते हैं
इवन अपने हाथ तक नहीं लगाने. That means आपका health to strength ratio is good. मैम ये चौंकड़ी मार के जब बैठते हैं तो कई बार जो टांगे हैं ये पाँव है वो सो जाता है, वो that is some deficiency or weakness या that is so again depends from person to person, but yes, it is more of a weight issue then of course. That means आपकी blood circulation कहीं ना कहीं nerves के ऊपर रुक जाती है, जिसकी वजह से फिर आपको वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि कई लोगों का पैस हो जाता है, फिर उनको थोड़ा सा मालिश करना पड़ता है, फिर जाके वो उठ पाते हैं. So these are the few things which tell you that, and it is, आप अगर नोटिस करें कि हमारे हिसाब से हम देखेंगे कि शायद किसी को देख के हमें लगेगा कि नहीं इनका वेट बहुत ज्यादा है, ही इज अनहेल्दी, पर वो कुछ ऐसी चीजें कर सकेंगे जो कम वेट वाले नहीं कर पाएंगे. Because their body is healthy, their strength to weight ratio is good. So never judge anybody or never judge your body also on that basis कि नहीं, as per the books, as per the BMI, my weight is not right, that means I am not healthy. That is not right. You should consider all these things. Another thing which you can check, आप हेल्दी हैं पर आपको हमेशा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, बॉडी पेन्स रहती हैं, लेथार्जिकनेस रहता है, आपका मूड हमेशा इरिटेबल रहता है. So all this means that you are not healthy. There is something going on wrong in your diet because of which these issues are coming. You are low of energy, there is mood swings, there are you're sleep deprived. If all these things are happening, that means there's something going wrong. So it's very, very important that you consider these things rather than other things to consider your health, right? So now I come to second, now next question, next myth of ours. Okay. Food is expensive, so it is good. अगर मुझे कुछ खाने को मिल रहा है और वो बहुत महंगा है तो भैया बढ़िया है. Exactly, myth है तो. बहुत बड़ी myth है. मानते तो है नहीं सब लोग. अब सब्जी की दुकान में भी जाएंगे तो गर्मियों में भी ब्रोकली लेकर आ जाएंगे, ड्रैगन फ्रूट ले आएंगे, राइट? यहाँ का अमरूद ले लेंगे, बाहर का अमरूद ले आएंगे. अमरूद बांटने पे हर जगह स्टिकर लगाया हुआ है, एप्पल के ऊपर, अमरूद के ऊपर, ग्रेप के ऊपर, इंपोर्टेड है मैम, महंगा है, और मैडम जी तो वही लेंगी. हैपेंस, राइट? कि नहीं नहीं आया है, दूर से आया है, अच्छा ही होगा. सो अंडरस्टैंड, जब कोई चीज महंगी होती है, पहली बात हम लोग की बॉडी जो है इट्स कम फ्रॉम नेचर. सो हमारी बॉडी को भी नेचर के क्लोज चीजें चाहिए. अगर कोई चीज महंगी है तो उसमें कोई ह्यूमन एफर्ट लगी है, और वो ह्यूमन एफर्ट ऐसी लगी है जिसका मतलब कि वो एक तो बहुत दूर से आया होएगा, तो वहां से उसका ट्रांसपोर्ट, सारा ट्रांजिट का कॉस्ट, उसके बाद उसकी स्टोरेज, फिर उसका कॉस्ट, ठीक है, वो सब कॉस्ट मिला के आपके एक चीज पे डाला जाता है, और जब उस चीज पे डाला जाता है वो महंगी हो जाती है. और पर्सनली आप देखें, जो चीज जितनी महंगी वो आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है, ये समझ लीजिए. कोई भी चीज अगर लोकल है, सीजनल है, लोकल मतलब कि आप जहां पे रहते हैं उसके 300 किलोमीटर तक में उगाई जाती है और आप तक पहुंच रही है. सीजनल मतलब सर्दियां हैं तो पालक आ रही है, भिंडी नहीं आएगी तो कहीं और से आएगी, राइट? वो उससे महंगी हो जाएगी. सो अगर आप सीजनल चीजें लेंगे, जो सस्ती चीजें होंगी वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेंगी, क्योंकि वो प्रोसेस्ड कम होंगी और उसमें ज्यादा ह्यूमन एफर्ट नहीं लगी होगी उसको स्टोर करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और वो बिल्कुल फ्रेश आएगी. कोई भी चीज जो जितनी दूर से आ रही है उसमें बहुत एफर्ट्स लगती हैं, और उसमें वो फ्रेशनेस, जो उसमें वो एलिमेंट्स होते हैं, जब तक आप तक पहुंचते हैं वो जीरोआइज हो चुके होते हैं, राइट? सो द मिथ कि महंगी है तो अच्छी है, नहीं है, ऐसा नहीं है. दैट इज नॉट फॉर यू गाइस, राइट? ओके, नेक्स्ट इज रुपिंदर जी का हैंड रेज है. रुपिंदर जी, यू कैन आस्क द क्वेश्चन. हाँ जी रुपिंदर जी. नमस्कार मैम. नमस्कार. मैम, आपने जो पीछे बताया ना कि जैसे पैर सो जा रहा है
पैर सो जाता है ना बैठे, किसी ने पूछा था सर ने, तो उसके लिए मैं कई बार बैठता हूँ, कई बार नीचे बैठता हूँ, तो उसके नीचे थोड़ा सा दबा के, किसी योगा करता तो उन्होंने बताया था, तो उसके नीचे दबा के आप करोगे, वो विद इन सेकंड में वो पैर एक्टिव हो जाता है दोबारा से, बिल्कुल टोस जहाँ से अंगूठा का पहला कट आता है वहां से दबा के शुरू हो जाता है। पर मेरा जो मेरा क्वेश्चन है कि मूड स्विंग, जैसे आप कह रहे थे ना कि हम बीइंग ए प्रोफेशनल, चाहे जसविंदर सर है चाहे हम है, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, लेक्चर आपका सुन रहा हूँ, दिमाग में है कि वो जीएसटी की रिटर्न की लास्ट डेट है। हमारा काम, जो मैंने ना जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी की थी तब हमें पहले बताया थी सीपीयू मल्टीटास्किंग, वो अब हमें लगने लग गया कि सीपीयू मल्टीटास्किंग नहीं करता, हम खुद सीपीयू बन गए हैं। जीएसटी भी आ रहा है, टैक्स ऑडिट भी दिमाग में आ रहा है। ऐसे में क्या होता है कि जब हम घर जाते हैं शाम को या कुछ जाते हैं, बच्चों की थोड़ी सी भी रोते हैं या कुछ करते हैं, हमें इरिटेशन शुरू हो जाती है। हम सारा दिन, क्योंकि हाँ ऑफिस में बैठे हैं, इतने सारे क्लाइंट को डील करते हैं, वहां हम बिल्कुल ठीक रहते हैं क्योंकि हमें बिहेव गुड करना पड़ता है। तो घर में जाके क्या होता है, पता नहीं क्या हो जाता है कि उस चीज को हम को लगता है कि वो कमजोर है शायद, इसलिए हम बोल देते हैं। ठीक है ना जी। तो इसमें वन ऑफ माई फ्रेंड मुझे सजेस्ट किया कि आप इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो अपने माइंड को, जैसे यहाँ पर पेन रख लो थोड़ी देर के लिए मुंह में, आपके दिमाग को लाइट लगेगा कि जैसे आप हंस रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने तो कह दिया कि ये मिथ है या वो है, बट इसको हाउ कुड वी कम आउट फ्रॉम दिस? योगा भी कर ले, मेडिटेशन कर ले, पर ये रोज का है। आज लास्ट डेट है किसी चीज की, किसी भी, आप यहाँ प्रोफेशनल ही है सारे, उनके बेटर हाफ भी हैं कईयों के, उनको उन्होंने भी फेस किया होगा कि ये क्या हो जाता है कि पता लग जाता है कि आज भाई कोई ना कोई केस खराब हो गया है या लास्ट डेट आ गई है, हमारी शक्ल देखी, अब हमारी बेटर हाफ को पता लग जाता है कि इनकी लास्ट डेट चल रही है, तो दूर रहो। तो फोन भी नहीं करते कई बार, नहीं ये आ जाता है। और थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रुपिंदर जी, आपके साथ ही नहीं, आई थिंक इट इज विद एवरीबॉडी, नॉट योर प्रोफेशन, इवन माय प्रोफेशन। जब मैं काम सीखते थे तो हम हमारे सीनियर को यही देखते थे करते, जब हम अनमैरिड थे तो हम भी जाते नहीं थे उनके रूम में। तो आज यहाँ पे आर्टिकल होंगे, अब जो सीए बन गए उनको पता है क्या हाल होता था कि आज सर इनकम टैक्स से आए हैं, हमारे सीनियर थे, पता लग जाता था कि उनके पैर, जैसे वो पैर आते मैट के साथ पैर साफ करते थे, हमें पता लग जाता था कि आज उनके कमरे में जाना है कि नहीं जाना है। हमारी के लिए एक मैं उनके किस ऑफिस से बात करूं, ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो तीसरा मेरा क्वेश्चन, रुपिंदर जी, विल कम बैक टू यू, दोबारा आने हैं, दोबारा विल कम बैक टू यू। हाँ जी, नहीं मैं आप बिल्कुल एज आंसर से देखिए सर, आई एम नॉट अ वेरी एक्सपर्ट इन साइकोलॉजी, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, बट मैं एक इतनी सी चीज कहूंगी जो मैं करती हूँ। ऑब्वियसली पूरा दिन मेरा क्लिनिक सुबह 7 बजे शुरू होता है और मैं 5 बजे तक मैं क्लिनिक में बैठी रहती हूँ। जब मैं घर वापस जाती हूँ, मेरा अपने आप को कूल डाउन करने का, सब कुछ भूलने का एक ही तरीका होता है कि मैं सबसे पहले घर जाके नहाती हूँ, अपने आप को पूरा फ्रेश करती हूँ, एंड देन आई गो बैक टू माय किड्स। एंड सर यू नो व्हाट, आई थिंक वो लिमिट हमें ही करनी पड़ेगी। हम इंडियंस में ये बहुत प्रॉब्लम है, आप नहीं, हम सब इंडियंस इतने कॉम्पिटिटिव है, मतलब एक दूसरे, और ये हमको खुद एक दूसरे, आप तो एक यूनियन है, आप लोगों को खुद इकट्ठे डिसीजन लेना चाहिए कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू नॉट सपोज्ड टू बी टेकिंग योर क्लाइंट कॉल्स। आई मीन दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। हम ही सब हैं जब आते हैं, हम कहते नहीं अमेरिका में जिंदगी बहुत अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया में जिंदगी बहुत अच्छी है, वहां पे डिसिप्लिन है, वहां पे लोग आफ्टर सर्टेन टाइम फोन नहीं करते, पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है, पर वो किसने क्रिएट की हुई है? वो हम सब ने क्रिएट की हुई है। आज इंडिया में हमने इतना कंपटीशन क्रिएट किया हुआ है, अगर आप नहीं सुनेंगे क्लाइंट की कॉल तो कोई और तैयार होएगा। हाँ जी, वो तो सुनते नहीं है, हम तो जी 24 आवर सर्विस देते हैं। सो ये हम लोगों ने खुद ही अपनी जिंदगी खराब की हुई है। एक दुकान नहीं खुली, दूसरी खुली है, वहां चले जाओ। So if we want to change this, we all have to take a cumulative decision that okay, we are not going to be working after a certain time. Otherwise, if you दूसरे लोगों को नहीं मना सकते, फिर अपना डिसीजन लो कि हाँ मैं 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद ऑफिस कॉल्स नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। आपके क्लाइंट समझ जाएंगे, जो आपको वैल्यू करते हैं वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, जो आपको नहीं वैल्यू करते कहीं और जाएंगे। बट देन सर अल्टीमेटली हम इस दुनिया में आए हैं जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए। काम जब हमारे लास्ट डेज रह जाते हैं ना, तो हमें काम नहीं याद आता, हमें ये याद आता था कि मैं कितने दिन अपने परिवार के साथ बिताए, कितने घंटे अपने परिवार के साथ बिताए। सो वो आपकी पर्सनल कॉल है।
अगर आप एक डिसीजन लेंगे कि मैंने 7 बजे के बाद नहीं उठाना, मेरा घर का टाइम है, तो है। शायद 10, 15, 1 महीना, 2 महीना आपके क्लाइंट्स को लगेंगे आपको अंडरस्टैंड करने में, बट देयर आर सर्टेन क्लाइंट्स हु वैल्यू दैट बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट। सो क्या करें, हिंदुस्तान है, we have to bear it. Thank you. Thank you. Right? Okay. So now coming back to my topic, food is expensive का हो गया। अब चीनी, गुड़, शक्कर, हनी, कौन सी चीज हेल्दी है? ब्राउन शुगर भी होती है, मुझे उसका कंसेप्ट नहीं पता क्या होता है वो। सर ब्राउन शुगर में थोड़े से मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस शुगर में थोड़े से ब्राउन शुगर के मॉलिक्यूल्स, समझिए गुड़ के थोड़े मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाते हैं, दैट बिकम्स ब्राउन शुगर, राइट? राइट तो राइट। अरविंदर जी आई थिंक यहाँ की फोटोग्राफी है, शायद हाँ जी। फोटोग्राफी है। हरिओम सर है, हरिओम नहीं है अरविंदर जी। अरविंदर जी आप इतने स्टिल थे, मुझे पता नहीं चला कि आपकी फोटोग्राफ है कि आप हो। सो बताइए सर कि आप क्या सोचते हैं कि शुगर, गुड़, शक्कर, हनी क्या अच्छा है? अरविंदर जी बताइए। तो हनी ज्यादा सुना है मैं। अच्छा जी, बेनिफिट तो thank you, ज्यादा sir. हनी के ज्यादा सुने हैं, लेकिन लेते कम है, तो लेते तो ज्यादा शुगर ही लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। हरिओम सर, नमस्कार जी। सर सुन रहे हैं मुझे? आप बताइए सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या अच्छा है? शुगर, गुड़, हनी? गुड। सर अनम्यूट करेंगे? हाँ शक्कर है, नंबर शक्कर। 1 ग्रेड इज शक्कर। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे क्लाइंट्स भी आके बोलते हैं मैम हम चीनी नहीं लेते, हम शक्कर वाली चाय ले लेते हैं, गुड़ वाली चाय ले लेते हैं, फिर भी वजन कम नहीं होता, हम तो इतना ध्यान रखते हैं। वेल लेट मी टेल यू, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो हनी हो, चाहे वो शक्कर हो, सब में ऑलमोस्ट कैलोरीज सेम है। शॉकिंग है ना? बिल्कुल बिल्कुल शॉकिंग मैम, ये तो कभी आउट ऑफ द ब्लू। यस, एक शुगर 1 टेबलस्पून हैज 16 कैलोरीज, एक ब्राउन शुगर 1 टेबलस्पून हैज 12 कैलोरीज, एक जैगरी गुड़ 1 टेबलस्पून हैज 26 कैलोरीज, एक हनी 1 टेबलस्पून हैज 20 कैलोरीज। So they are almost the same. But why do we say that sugar is not good and whereas honey is good, good is good, shakkar is good? Because जो शुगर होती है वो completely refined होती है, वो carbohydrate होती है, उसमें कोई minerals नहीं होते। But whereas if I talk about your jaggery गुड़, तो उसके अंदर आ जाता है आपका विटामिन बी, उसमें आ जाता है आपका कैल्शियम, थोड़ा सा आयरन, थोड़ा सा मैग्नीशियम, थोड़ा सा सोडियम, थोड़ा सा पोटेशियम। अगर हम हनी की बात करें तो उसमें भी अगेन थोड़ा सा पोटेशियम आ जाता है, थोड़ा मैग्नीशियम आ जाता है, थोड़ा सा फॉस्फोरस आ जाता है, थोड़ा सा विटामिन बी आ जाता है, थोड़ा सा विटामिन सी आ जाता है। तो अगर कैलोरी वाइज बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है, पर यस अगर हम लोग गुड़ या हनी लेते थोड़े से बेनिफिट्स और मिल जाते हैं। तो इसलिए जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कह देते हैं कि गुड़ अच्छा है, शक्कर अच्छा है, पर ऐसा शुगर अच्छा नहीं। दैट इज द वन ऑफ द मेजर थिंग्स व्हिच इज अ डिफरेंस अमंग देम, राइट? सो अगर तो आप पतले होने के लिए शक्कर या गुड़ ले रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, पर अगर आप गुड हेल्थ के लिए अपना शक्कर या गुड़ ले रहे हैं, दैट विल सर्टेनली हेल्प यू, राइट जी? ठीक है मिन्नी मैम? राइट मैम। हाँ जी ठीक है। ठीक है, सो नाउ आई कम टू द नेक्स्ट। I have a question. या Like you know sugar and उसके जैगरी के अलावा like ये sugar free and stevia, how healthy they are like eating, because कि वो लेना substitute लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? Yes, Ranjana, very nice question. Thank you for asking. See, if I talk about stevia, sugar-free, मतलब sugar-free जो है, these are all chemicals. They have all been created through a factory. They have their side effects. You have a memory loss, you have a hair loss, and various other factors.
which compromise. But whereas स्टीविया एक ऐसी चीज है, ये एक पौधे का नाम है, तो उसके पत्तों को सुखा के ये बनाया जाता है, right? So it is very healthy. So you can have stevia if you want to have. It is available in drops, it is available in tablets, in powders. You can have that. Even कि आप घर में ही स्टीविया का पौधा लगा लीजिए, उसके पत्तों को सुखा के अपने चाय में डाल दीजिए, वो बेस्ट है, right? So that is good. But if you talk about sugar free, if you talk about Splenda, Gold, I don't approve it. Personally, I don't approve it, right? Thank you, ma'am. Okay, welcome, dear. Now, next question which we have is, हाँ, अगर हमारा डिनर है, आज रात को हमारा डिनर है और हम लोगों ने बहुत अपने पसंद का खाना खाना है, मतलब अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाना है, अपने फेवरेट लोगों के साथ जाना है, मजा करना है और खूब खाना पीना है, तो हम क्या करेंगे ताकि हमारा वेट ना बढ़े? क्या पूरा दिन हम लोग खाली पेट रहेंगे? बहुत लोग करते हैं ऐसे कि आज नहीं खाना यार, रात को डिनर है, शादी पे जाना है, बड़ा अच्छा खाना है, बड़ा अच्छा वेन्यू है, वहां खाएंगे, आज नहीं खाते या थोड़ा कम खा लेते हैं, या ऐसा करते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं ताकि वहां पे फिर हम अगर खाएंगे भी तो गिल्टी नहीं होना पड़ेगा, वो बिल्कुल ठीक रहेंगे हम, राइट? सो इज दिस अ मिथ और अ फैक्ट? इज दिस अ राइट प्रैक्टिस और नॉट? कंपेयर टू व्हाट? Not a right मतलब practice. राइट मतलब कि क्या मैम, अगर मिनिमम आपने रात को जाना है डिनर पे, तो क्या आप अपना नॉर्मल रूटीन रखेंगी जैसे आप आम अपना खाना वगैरह खाती है, जो अपनी आम नेचुरली एक्सरसाइज की लगेगा? हाँ, नेचुरली ये है कि हेल्दी जो अगर रूटीन है तो वो तो रखा जाएगा, बट उस दिन थोड़ा कैलोरीज को माप कर कम खाया जाएगा कि भाई रात को अगर हमारी ओवर ईटिंग होनी है तो उस दिन थोड़ा कम लें, या अगले दिन मॉर्निंग में भी थोड़ा अपना कुछ चीजें स्किप कर दें। मतलब मैं तो ऐसा ज्यादा कर चाहूंगी। दे, हाँ, थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज करूंगी। हाँ, राइट, यू आर राइट मैम। सो ये क्योंकि एक अंदर गिल्ट आ रहा है, अदरवाइज मुझे नहीं पता कितना हेल्दी है कितना अनहेल्दी है, बट अपने अंदर से एक फीलिंग आती है कि थोड़ा अगर हमने ओवर ईट करना है तो एक टाइम हम थोड़ा लेस ले लें और थोड़ा नींबू पानी वगैरह पी लें ज्यादा नॉर्मल। सो एक्चुअली इफ यू सी कि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि अगर रात का खाना हमने बाहर खाना है, सो व्हाट वी डू इज कि ब्रेकफास्ट खा लेंगे, लंच नहीं खाएंगे, ठीक है ना? और आज अगर हम लोग 4 किलोमीटर दौड़ते थे तो आज हम 8 किलोमीटर दौड़ेंगे, बट रिजल्ट क्या होता है उसका कि अगर हमने पूरे दिन में कम खाया होता है तो उस टाइम पे आते आते हमें बहुत भूख लगी, ओवर ईटिंग, और वहां पहुंच के अपना फेवरेट फूड तो खाने तो उसके अलावा और भी बड़ा कुछ खा लेते हैं हम लोग, राइट? और उससे क्या होता है, ना तो वो खाना एंजॉय कर पाते हैं, फिर घर आके ब्लोटिंग, अगले दिन सुबह हाय ज्यादा खा लिया, ओवर ईट कर लिया, ये सब कुछ होता है, राइट? अगर हमने एक्सरसाइज खूब ज्यादा कर ली, हम थके होते हैं और मेंटली होता है कि भैया बहुत एक्सरसाइज की है, आज खुल के खा सकते हैं। सो दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। इफ यू आर गोइंग आउट फॉर अ डिनर, सो इट्स ओके, बट देन अपना ब्रेकफास्ट खाइए, लंच खाइए, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते थे वो करिए, ताकि जब आप वहां पे पहुंचे आपको उतनी भूख लगे जितनी आपको यूजुअली लगती है। एंड बिलीव मी, जब हम उतनी ही भूख लगी थी तो हम राइट खाना खाएंगे। We will have the right choice of food and the right quantity of food, and we will not have ABC, acidity, bloating, constipation, कुछ नहीं होएगी। We will enjoy, right? और सबसे अच्छा तरीका यूजुअली मैं जो अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, कभी भी खाली पेट कभी भी कहीं पे मत जाओ। सबसे अच्छी चीज चावल लीजिए, उसमें थोड़ा सा दही डालिए, चावल और दही मिक्स करके ना 3-4 चम्मच बना के उसको खा के फिर जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं, कोई आपने मसालेदार खाना खा लिया पेट खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होएगा आपको। जस्ट मेक श्योर मैम, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये हमारे गट को एक लेयरिंग दे देता है, जिसकी वजह से आपको फिर जो खाना है वो स्पाइसी भी हो या आप ओवर ईट भी कर जाए, वो एक कुशन दे देता है और आपका खाना बड़ी अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है। जैसे एक लेप टाइप सा
गट में क्लेप टाइप सा कर दिया जैसे यस यस मैम, और एक आपको फुलनेस की फीलिंग दे देता है, फीलिंग तो आप वहां जाके ओवर ईट भी नहीं करते और जो खाते हैं वो आपको प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट करता। तो अपने 4-5 चम्मच दही के और चावल के मिक्स करके खा के जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा टिप जो मैं आप लोगों को दूंगी, जब वापस आते हैं पार्टी से तो गुलकंद रखिए अपने घरों में। गुलकंद 1 चम्मच लिया, उसको पानी में डाल के थोड़ा सा बॉईल करके वो पानी पी लो आफ्टर वंस यू कम बैक होम, एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। सो यू कैन ट्राई दिस। अगर गुलकंद नहीं है तो सिंपल अपने पेटल्स होंगे गुलाब के, सबके घरों में गुलाब लगा होता है, उसके पेटल्स को अच्छे धो के पानी में डाल के थोड़ा सा उबाला देके वो पेटल्स को भी च्यू करो अच्छी तरह और वो पानी पी लो। इट विल रियली वर्क। पहले जमाने में हम लोग गुलकंद ही खाते थे, जो हमारे बुजुर्ग है, तब ये बाकी सब कुछ पैकेटों वाली चीजें नहीं होती थी और उसी से उनका डाइजेशन बिल्कुल ठीक रहता था। सो यू कैन ट्राई दिस, राइट? ओके, सो नाउ आई होप मैं किसी को बोर नहीं कर रही, मैं बहुत ज्यादा चीजें कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ छोटे से टाइम में। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जूस या फ्रूट क्या अच्छा है हमारे लिए? एक बीच में क्वेश्चन था रुपिंदर जी का कि कर्ड शाम को भी खा सकते हैं? हाँ, दही रुपिंदर जी, ऐसा है कि दही एक प्रोबायोटिक होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना? आप उसको किसी भी टाइम ले सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। फॉर फीमेल्स आई यूजुअली से कि आफ्टर 5-6 o'clock दे शुड नॉट टेक कर्ड, बट फॉर मेल्स yes they can, because females में हार्मोनल्स, बहुत सारे हार्मोन्स का इशू होता है, उनको ब्लोटिंग बहुत जल्दी होती है कंपैरेटिवली टू द मेल बॉडी। सो दही फीमेल्स कैन अवॉइड आफ्टर 5-6 o'clock, खट्टा हो जाता है तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आता है, बट फॉर मेल्स yes they can have curd, थोड़ा बहुत देना चाहे it's not an issue, they can have that, right? Okay, so now my next is juice या fruit क्या अच्छा है? फ्रूट एनीटाइम both. Yes, absolutely. Yes, so Minnie ji is absolutely right that fruit is good anytime, because फ्रूट के अंदर जो फाइबर होता है, जो उसके छिलके में होता है, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपके जूस में नहीं रहते। दूसरी बात, जब आप जूस पीते हैं तो आप जैसे 3 या 4 संतरों का 1 गिलास का जूस बनता है, एम आई राइट? तो वो 4 संतरों का मीठा पानी आप पी रहे हैं, जो इमीडिएटली आपके इंसुलिन लेवल्स को अप कर देता है। फाइन। अगर आप एक फ्रूट खाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 ऑरेंज खा लेंगे या 2 खा लेंगे, उससे ज्यादा नहीं खा पाएंगे, तो वो प्रॉपरली आपकी बॉडी में एसिमिलेट होएगा, धीरे धीरे उसका शुगर लेवल आपकी बॉडी में जाएगा, एसिमिलेट होएगा, एकदम से स्पाइक नहीं आएगा। इसलिए स्पेशली विद डायबिटिक पेशेंट्स we never recommend them to have juices. Juices is a big no for them, right? Then सर्दियों का टाइम आ गया है, शकरकंदी आ गई है, स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो अच्छा है कि पोटैटो अच्छा है? आलू अच्छा है कि शकरकंदी अच्छी है? स्वीट पोटैटो और पोटैटो सीजन में अच्छा है। स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो साक्षी, वेरी नाइस। एनीबडी एल्स? स्वीट पोटैटो। सीजन में जब स्वीट पोटैटो आ रहे हैं तो वो अच्छा है, जिस समय उसका सीजन है। जैसे अब सर्दी में आप आ रहे हैं, आप बहुत आप बढ़िया समझ है। रही हैं मिनी मैम, मेरी बात बहुत अच्छी तरह सुन रही हैं आप, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, यस। बट देन आलू तो हर सीजन में अवेलेबल होता है, ये भी है ना? सो इफ वी सी कि एक आलू में और स्वीट पोटैटो में अगर मैं कैलोरी वाइज बात करूं, दोनों सेम है, राइट? दोनों की कैलोरीज में 19-20 का फर्क है, बट एक स्वीट पोटैटो में विटामिन ए है, तो एक पोटैटो में पोटैशियम है, एक स्वीट पोटैटो में एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो आपके जो पोटैटो है उसमें ग्लाइकोलेपिन है, ग्लाइकोलेपिन एक इंग्रेडिएंट होता है, वो है। सो दोनों ही अच्छे हैं अपनी अपनी जगह में। सो हम ये नहीं कहेंगे कि स्वीट पोटैटो अच्छा है या आलू अच्छा है, दोनों ही अच्छे, तो दोनों को खाइए, घबराइए मत उनको खाने से। नेक्स्ट, एक ये भी बड़ा मिथ है, गर्म पानी पी लो सारे पाप धुल जाएंगे। गर्म पानी अच्छा है या ठंडा पानी, ये बात करते हैं हम।
गर्म पानी। लगता है सर ने बहुत पाप धोले हुए अपने गर्म पानी। नॉर्मल पानी बेस्ट है गरम बॉडी के लिए, तो गरम पानी। नॉर्मल वाटर, ना बहुत ज्यादा Okay. ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म, All right. नॉर्मल। ओके, सो हियर आई कम। चाहे वो पानी गर्म हो चाहे वो पानी ठंडा हो, अगर आप उसको वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो दोनों, देयर इज नो मिरेकल, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप गर्म पानी, खाना खुना खा लिया, आप गर्म पानी पी लो जी डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? दोनों पानी सेम है। बट अगर मैं बात करूं कि ठंडा पानी, अगर आप खाना खा रहे हैं उस टाइम पे ठंडा पानी ना लीजिए, बहुत चिल्ड पानी मत लीजिए, क्योंकि वो जो आपकी वेसल्स में जो फैट होता है उसको थोड़ा सा फ्रीज कर देता है, विच इज नॉट गुड। एंड प्लस वो बॉडी को एक एडिशनल टास्क दे देता है। अगर बॉडी खाना पचा रही है और आप साथ में आप ठंडा पानी पी रहे हैं, तो उसको एक और टास्क मिल गया कि उसने उस पानी को एक अपने बॉडी के टेम्परेचर में लेके आना है, तो बॉडी को डबल टास्किंग करनी पड़ती है, राइट? एंड प्लस ठंडा पानी से हम लोग का गला खराब भी हो सकता है। गर्म पानी यस आपके मूड को इम्प्रूव करता है अगर आप देखें, और जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको आपकी बॉडी से निकालता है, और प्लस गर्म पानी आपको कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। सो ये कुछ फायदे हैं गर्म पानी के कंपैरेटिव टू ठंडा पानी। बट अगर हम बात करें वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है, राइट? So now, any questions? Thank you so much. I think we've had a nice session, and जो मेरे दिमाग में चीजें आई, I thought these are the basic जो मेरे clients मुझे पूछते हैं, and I always answer them these questions. So anything you would like to ask me? मैम एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में सीए मोहित सोई सर का। ही इज सेइंग कि प्लीज गाइड अस अबाउट टेकिंग स्वीट आइटम्स आफ्टर मील्स। ऐसा है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मोहित सुरी सर का, कि मीठा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। जैसे मैंने कहा मीठा इंपॉर्टेंट है, बट अगेन कौन सा मीठा खा रहे हैं? हम लोग इतने लकी हैं कि हम एक हिंदुस्तान, इंडिया जैसे मुल्क में पैदा हुए हैं। हमारे यहाँ मीठे के तौर में लड्डू है, शक्कर पारे हैं, पिन्नी है, पंजीरी है। सो मीठा, अगर आप कहीं पे जाते हैं वहां पे अगर आपको मीठा मिल रहा है लाइक चॉकलेट्स और मे बी सम केक, मुझे लगता है मैम का कनेक्शन कहीं गड़बड़ हो गया है शायद। मे बी मैम का शायद नेटवर्क कहीं टूट गया है। शी माइट बी rejoining. Just hold on, I'll call her. हाँ मैम रिजॉइन कर लो, आपका मेरे ख्याल हो। हाँ 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 ओके। मैम अभी रिजॉइन कर रहे हैं। मिन्नी जी आप बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट कर रही हैं। रंजना जी सीइंग यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। अभी आप लुधियाना में हैं या उधर पंचकुला? लुधियाना में सर। ओके ग्रेट 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 ग्रेट। मैम का इंटरनेट कनेक्शन टूट गया है। शी माय जॉइनिंग विद इन अ मिनट और सो। सुभाष बांसल जी मोगे तो रुपिंदर ढाट जी ਤੁਹਾਨੂੰ भी बड़ी देर बाद दिखा यार। हरिओम जी सीगे। rest of the faces I cannot see. आउट ऑफ सब्जेक्ट टॉपिक आता ना थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। हाँ इसी करके ही रखा था, पर मुझे I was expecting a lot more gathering but somehow anyway. हरिओम सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। So nice of you
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ that we are on the right track and right hands. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, you are mute. मुझे वेटिंग में भी नजर नहीं आ रहा. रंजना जी आपका कोई अभी हैंड रेज है, क्वेश्चन है, डाउन कर दो. है सर, क्वेश्चन तो है, पर okay. अगर I'll keep it. I don't know. Ma'am is not able to rejoin. ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਵੀਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਡਮ। ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। आप मोबाइल से ज्वाइन कर लो। ओके 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 वी आर वेटिंग। हाँ जी मैम का कहीं नेटवर्क का इशू ज्यादा लग रहा है बट शी इज ट्राइंग। मैंने उनको बोला है आप नेट कंप्यूटर को छोड़ के मोबाइल से ज्वाइन कर लो बिकॉज इट विल बी ओनली 2 3 4। हाँ जी सुभाष जी मोगे दिया की खबरां ने? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर वो मुड़ के दर्शन ही नहीं हुए, इतना टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 3 इयर्स। नहीं सर वो बस आई हुई है। जोड़ा जी आ गए जी। और सुनाओ की हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर। हर कोई फीडबैक दे दिया करो कि भी ਅਸੀਂ ਕੰਮ ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं वेरी अप्रिशिएबल सर, डेफिनेटली ग्रेट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟਸ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਦ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। Let us see, she might be joining. हाँ जी मनिंदर जी तुसी कुछ शेयर करो उन्नी देर। अनम्यूट कर लो। Ma'am has joined. Okay. Admit her. Great. जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ को होस्ट बना ਦਿਓ। जी सर। हाँ जी साक्षी मैम। Hi, sorry, there was a network issue. Perfectly fine. कोई इशू नहीं। हाँ जी sir. So now we were talking about मीठा. So I don't know आपने मुझे कहाँ तक सुना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर हम लोग मीठे की बात करें, मीठा is equally important because it has fat. But then again हम कैसा मीठा ले रहे हैं? जैसे कि मैं बता रही थी that we are very lucky that हम लोग एक ऐसी जगह है जहां पर मीठा हमारे घरों में बन जाता है। हमारे घरों में शक्करपारी बन जाती है, लड्डू बन जाता है, पिन्नी बन जाती है, पंजीरी बन जाती है। तो सीजन के हिसाब से और अपने लोकल फूड के हिसाब से अगर हम लोग वो मीठा ले, नथिंग लाइक इट, वी शुड टेक इट एट एन appropriate requirement of our body. अगर हम वो ले, it is good. Forget cakes, forget chocolates. जब भी आप किसी के घर जाए, अगर आपको उनके घर में कोई बनी हुई घर की चीज है, जैसे खीर हो गई, सेवैयां हो गई, ऐसा कुछ है तो उसको मिस मत कीजिए, उसको खाइए बिना किसी इशू के, उसको खा सकते हैं आप, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट जो चीजें रेडीमेड है, अवॉइड इट। हम जैसे अभी दिवाली थी, मैं कहती हूँ दिवाली में आप सबको मीठे का क्रेविंग हुआ होगा कि मीठा खाएं, पर किसी के घर जाके मीठा खाएं, तो मीठा वहां पर ऐसा मीठा खाएं जो सिर्फ दिवाली में ही मिलता है, जो वैसे नहीं मिलता। गणेश चतुर्थी होती है तो मोदगिल होते हैं जो गणेश के, वो मिलते हैं, वो खाइए। वैसे ही जब होली आती है
तब एक स्पेशल मिठाई बनती है, वो खाइए। सो वो खाइए, उसे क्रेविंग भी नहीं होगी। एक आप वो खाएंगे ना, आपको क्रेविंग नहीं होगी। लड्डू एक खाएंगे, शक्करपारी थोड़ी सी खा लेंगे, आपको मीठे की क्रेविंग नहीं होगी। आप एक चॉकलेट खाएंगे, एक पीस खाएंगे, 2 चॉकलेट पीसेस और खाने का मन करेगा। सो चूज व्हाट स्वीट यू ईट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम एक और पॉइंट है, नॉर्मली कई बार हमने सुना है, आई डोंट नो वेदर इट इज ए मिथ और ए फैक्ट, दैट जो फ्रूट है वो कहते खाने के बाद हम खाते हैं तो दैट इज नॉट यूजफुल, दैट इज वेस्ट, हमें खाने के पहले खाना चाहिए। ये हाउ फार इट इज ट्रू और हाउ इट इज इट ए मिथ और ए फैक्ट? नहीं जी सर, देखिए हर चीज को ना डाइजेस्ट करने का अपना एक हमारी बॉडी के पास एंजाइम्स होते हैं। तो जो नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के एक अलग एंजाइम जूसेस की जरूरत पड़ती है, और जो हम लोग एक फ्रूट खाते हैं उसके लिए एक अलग एंजाइम पड़ती है। So not combined together, we take them at a difference of 1 hour, 1.5 hour. That is always advisable. That gives you a better digestion. That gives you a better assimilation of that food. Great. जी रंजना जी का हाथ रेज है, she can ask her question. Ma'am, I have a question, like, from last 2 years, when COVID, after COVID, so, eating Dolo and, other medicine with minor cold and cough is very common now, because earlier we might, avoid for 2-3 days, but now after COVID, we usually, take medicine like as a precaution, you can. So, that medicines का जो intake है, मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो उससे जो बॉडी में वेट अगर गेन हो रहा है, या उस दौरान अगर हमने कोई मेडिकेशन ली है, तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, या उसमें अगर हमारे को कुछ वेट रिटेंशन हो रहा है, वाटर रिटेंशन हो रहा है, या बॉडी वेट भी, मतलब इवन आई फील कि थोड़ा मेरा आई हैव गेन, तो हाउ वी कैन उसके लिए क्या हम डाइट में चेंजेस ला सकते हैं ताकि उसको हम डिटॉक्सिफाई करके, मतलब हाउ वी कैन गेट बैक टू, उसको कैसे मैनेज करें? रंजना, एक बात तो ये कि यू आर राइट अबाउट इट कि आप अगर कोई भी एंटीबायोटिक्स लें, कोई पेन किलर्स लें, कोई मसल रिलैक्सेंट्स लें, कोई नींद की गोली लें, कोई डिप्रेशन की मेडिसिन लें, इन लोगों का काम बॉडी में वाटर रिटेंशन होती ही होती है। That is a fact that happens, right? Now it stays there depending upon potency of the medicine and the duration of the medicine you are taking, but it is temporary. It is not a permanent thing, and it is not that कि आपकी body में fat deposit हो जाता है because of having those medicines. That doesn't happen. It is just a water retention which takes place, and it goes gradually. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने डोजेज कितनी देर ली है। हाँ, अगर आप स्टीरॉइड वगैरह ले रहे हैं देन ऑफ कोर्स उसको लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट कुछ और आता है। सो पानी की इंटेक ज्यादा रखिए, और मैम सिंपल अपना वही घर का खाना खाते रहिए, कुछ भी माइनस मत करना, बिकॉज व्हेन यू आर हैविंग दोस मेडिसिन यू हैव टू हैव प्रॉपर कार्ब्स, प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर फैट। ठीक है, ये मत सोचा मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं कम खाना खाऊंगी तो बेटर रहेगा, मेरा वेट जल्दी नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, राइट? उसका असर वो वाटर रिटेंशन का 2 दिन 3 दिन रहेगा बॉडी में, 4 दिन, चौथे 5वें दिन तक आप अपने नॉर्मल वेट पे आ जाएंगे, राइट? बट देन इफ यू हैड सम मेडिसिन फॉर रेगुलर बेसिस देन यस, का हमारी बॉडी से इफेक्ट जाता है। कोई नहीं है कुछ मेजर चीज को हटाने के लिए, कोई बहुत डिजीज था ऐसा जिसके लिए हमको बहुत कंटिन्यूस मेडिसिन लेनी पड़ेगी। सो दैट इज देयर। मैम व्हाट इज द राइट इनटेक ऑफ वाटर इन ए डे? वो भी यू लाइक मैंने बोला ना व्हाट्सएप पे यू गेट लॉट ऑफ सजेशंस एंड व्हिच इज डोंट नो व्हाट इज द फैक्ट, देयर आर मोर ऑफ मिथ्स। आइडियली अगर हम बात करें, पानी एक बॉडी को जो चाहिए होता है दैट इज अराउंड 8 to 12 ग्लासेस या फिर फ्रॉम 2 to 3 लीटर्स। बट देन अगेन इट डिपेंड्स, देयर आर सर्टेन पीपल जो 5 या 6 ग्लास से ज्यादा पानी पी ही नहीं सकते। अगर वो उससे ज्यादा पानी पीते हैं तो वो उनकी बॉडी कंफर्टेबल नहीं होती।
So it is very, very individualized. Okay. We cannot say that there is a standard कि इतना लेना ही लेना है. Yes, तो मैंने आपको बता दिया इतना स्टैंडर्ड है, बट डोंट थिंक दिस कि अगर आप दिन के 10-12 ग्लास नहीं पी पा रहे तो आप कुछ गलत कर रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है. You have to, अगर आप 6 ग्लास 7 ग्लास पी रहे हैं, आपकी यूरिनेशन अच्छी आ रही है, मेजर फैक्टर ये होना चाहिए कि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, विच मीन्स कि आपका जो यूरिन जब आप पास करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. वो अगर गाढ़ा येलो है, गाढ़ा पीला है, then that means you are not taking apt amount of water which your body requires. ठीक है. अगर आप दिन के 5 या 6 ग्लास भी ले रहे हैं और आपका जो यूरिन है उसका कलर ट्रांसपेरेंट है, you are doing everything right. Don't worry, everything is fine. Ma'am, related to this, like morning first urination after you get up, that is normally yellow. That is okay. Yes, what? Yes, Because that is there okay. is a But then gap of throughout the around. day. Right. Right. Yes, sir, that is fine. मैम एक क्वेश्चन है कि डायबिटिक की डाइट में जैसे उनको स्वीट क्रेविंग होती है, तो कुछ है ऐसा कि वो ले सकते हैं, या डायबिटिक्स की डाइट बताइए एक बार कि कितना उन्हें नॉर्मल डाइट से हटकर लेना होता है. देखिए मैम, डायबिटीज में हम एक चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे. आप वैसे तो हम लोग नेचुरल चीजें, अगर नेचुरल शुगर ले रहे हैं आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे अब मैं सर्दियों में आ जाऊं तो सर्दियों में हमारे घरों में यूजुअली बनता है गाजर, मटर, आलू या फिर आपका टर्निप, छोलिया. ठीक है ना. ये चीजें मेजरली बनती हैं और ये चीजें मेजरली जीआई में बहुत, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, तो यूजुअली हम डायबिटीज पेशेंट्स को मना करते हैं उसके लिए. राइट. वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, शकरकंदी और आलू दोनों में कैलोरी तो सेम है, लेकिन जीआई दोनों का अलग है. शकरकंदी इज बेटर देन योर पोटैटो, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम से शूट नहीं करता. तो जहां पे पोटैटो है वो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जल्दी से शूट कर देता है. ठीक है मैम. सो सर्दियों की अगर आप मुझसे बात करें तो अगर आप थोड़ा सा गाजर, बटर, आलू, छोलिया, शलगम, अरबी, ये चीजें थोड़ी सी कम ले in comparison to the normal members of the family, that is better. Again, in fruits, you know, you focus more on apple, papaya, guava, pear. These fruits are better for you. What about Being a oranges? diabetic patient. Oranges, yes, you can before 4 to 5 p.m. मौसमी ले लो, कीनू मत लो, माल्टा मत लो. अच्छा. हाँ जी. Banana? Banana, early morning fruit for a diabetic patient. ठीक है ना. जैसे आप सुबह Raisins वॉक पे वगैरह जा में तो रहे कोई हैं. प्रॉब्लम. रेजिन्स थोड़े से जैसे स्वीट क्रेविंग के लिए मैं पूछ रही हूँ मेनली. हाँ जी, तो हाँ जी, जैसे रेजिन्स. हाँ मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा. एक होते हैं रेजिन्स, एक होते हैं मनक्के. एक किशमिश, एक मनक्के. तो किशमिश खा सकते हैं, मनक्के नहीं खा सकते. और किशमिश मतलब 4-5 पीसेस, दैट्स इट. डेट, 2 डेट्स खा लीजिए दिन की, वो चलेगा. फिर हमारे ना जैसे प्रोन्स आते हैं, टेट्रा पैक में आते हैं, पर अगर आप उसका एक प्रोन भी खा लेना तो आपकी जो शुगर की क्रेविंग है ना वो हट जाती है. वो ले सकते हैं. राइट. थोड़ा सा गुड़ लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, बट डोंट मेक इट अ प्रैक्टिस. अगेन मैम, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका HbA1c कितना चल रहा है. ठीक है ना. उसके हिसाब से देन आई गाइड माय क्लाइंट्स. इफ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, आई हैव स्पेशल डायबिटीज डाइट फॉर डायबिटीज रिवर्सल, for improving your sugar levels, improving your HbA1c levels. तो उसके हिसाब से then I guide my clients. नहीं, जैसे अभी जैसे मैं नॉर्मल पूछ रही हूँ. डायबिटिक पेशेंट उनको भी तो स्वीट क्रेविंग होती है ना, तो स्वीट क्रेविंग पे क्या ले सकते हैं ऐसा? जैसे मैंने आपको बताया मैम, ये सब चीजें ले सकते हैं, प्रून्स ले सकते हैं, थोड़ा सा सारी चीजें मतलब. यस, रेजिन्स खा सकते हैं, मनक्के नहीं खा सकते, डेट्स खा सकते हैं, ये ले सकते हैं, बट अगेन इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड द टाइम शुड बी. ठीक है. थैंक यू मैम. Ma'am, there's a question from CA Ravi Kumar ji. Sir is asking, what should be the average calories consumption for normal person on daily basis, and how can we shift these calories to increase or decrease weight? Hello.
हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. या नाउ इट्स बेटर मैम. आप एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगी? Sure, ma'am. Sir is asking what should be the average calories consumption for a normal person on daily basis, and how can we shift these calories to increase or decrease weight? ओके, सो सी, अगर एक एवरेज पर्सन है एंड जो काम वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, लाइक प्रॉपर ऑफिस का काम कर रहे हैं, अराउंड 30 to 45 मिनट्स की वॉक कर रहे हैं, देयर इज नो मेडिकल इशू, सो द कैलोरी इनटेक व्हिच यू नीड टू टेक इज अराउंड 2000 to 2200 कैलोरीज ऑन डेली बेसिस. बट नाउ इफ यू वांट टू रिड्यूस वेट, व्हाट टू डू? What we can do is, one, create a calorie deficit of around 300 calories per day will help you to reduce weight. Secondly, the timings of your meals are very, very important. What time you're having your breakfast, what time you're having your lunch, what time you're having your dinner, that's important. Thirdly, your stress level. ये मत सोचिए कि हम सिर्फ खाने पे सब जोर देंगे तो हम पतले हो जाएंगे. There are various factors for weight loss. आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आप सो कितनी देर रहे हैं, आप पूरे दिन में कितने एक्टिव हैं. ये नहीं कि आप जिम हो आए 1 घंटा, बट बाकी what about the rest 23 to 22 hours? What are you doing? If you are active throughout those 23-22 hours, that matters a lot. You have to make sure that अपने जिम के अलावा पूरे दिन में 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करिए. एक्सेप्ट जिम या वॉक या योगा, जो भी आप कर रहे हैं उसको छोड़ के 10,000 स्टेप और पूरे होने चाहिए on daily basis. So these are some of the very, very essential points to have a good weight loss, and it happens gradually. Right, ma'am. And then next question is from CA Mohit Soi sir. Sir is asking, please also guide us about the importance of dry fruits in our diet, especially in the morning, as is normally suggested. Yes, dry fruits are very, very important in our daily diet. They are one of the major sources of your protein, major sources of your fat. The body. Even there are some raised fruit, like the nutrients है वो इतनी अच्छी तरह आपकी बॉडी में assimilate नहीं होंगे. Yes sir. मैम आपके बीच में ना आवाज आई नहीं पूरी, ब्रेक हो गई थी. You can repeat the answer. I'll repeat the answer again. What I'm saying is that you need to have at least 5 almonds, 2 walnuts, and maybe 5 raisins or maybe 2 dates on every single day. And because they're a good source of protein, they're a good source of fat, which is important for our body. And you have to make sure that you soak them overnight, especially your seeds and the dry fruits, because they have a protective covering, ठीक है ना, which prevents those nutrients which are there inside these nuts and these seeds to assimilate in our body. So it is important कि हम उसको overnight soak करें, उसको peel करें और फिर खाएं. फिर जो उसकी assimilation हमारी body में होगी, उससे हम उसका maximum nutrient ले पाएं. So that is very, very important. Ma'am, you can off your video for better connectivity for some time if you're facing connectivity problem, na? Okay. Yeah. Any other questions? एक कुलदीप सुनेजा जी का क्वेश्चन है, वन मेजर इशू विद पंजाबी और सीए इज belly fat. Even after controlling diet, unable to reduce belly fat. Is it possible to reduce belly fat with controlling diet? Basically, what is wrong that fat gathered around belly, otherwise body fat is okay. Sir, you majorly, hello? Ma'am, you are audible. Yeah, now can you hear me, sir? Yeah, we can hear you. Yeah. So what I'm saying is that belly fat is majorly more prominent in males than in females. ठीक है ना सर, ये बॉडी का कॉम्पोजिशन ऐसे बना होता है मेल्स का. सेकेंडली, इसको अवॉइड करने के लिए पूरा लाइफस्टाइल ऐसा जिसका ध्यान रखने की जरूरत है.
जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी पूरी दिन में एक्टिविटी लेवल कितना है और आप जो खा रहे हैं वो ठीक टाइम पे खा रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है वो आपका ठीक है कि ठीक है. ऑल दीज थिंग्स रियली मैटर फॉर रिड्यूसिंग योर बेली फैट. बट यस, इट इज पॉसिबल. एंड दूसरा, बेली फैट आप सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे मत डालिए. आई थिंक देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन वेरियस professions who have that problem. And if you need professional help, you can come to my clinic and I'll try my level best to give you the best of the advice to help you reduce that belly fat. मैम क्लिनिक का एड्रेस बता दो सबको. हाँ जी, माय क्लिनिक इज इन सराबा नगर, 8E सराबा नगर. अगर आप उसको, इनफैक्ट आप मेरे पेज को प्लीज जाइए एंड यू कैन लाइक इट इन इंस्टाग्राम एज वेल एज इन फेसबुक. इज बाय द नेम ऑफ अन्विता छतवाल. And I keep on putting my daily updates, my whatever knowledge I have, you know, giving my tips and whatever offers we keep on having in our clinic. So you can just go through that. Take benefit out of it. Jasminder ji announce a special package for chartered accountant and tax professionals. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. Don't worry. आपको कहने की जरूरत ही नहीं. You're most welcome. Do not Jasminder ji. I mean, personally from my side, there'll be definitely a discount. Ma'am is very nice. She is always generous, and we have already offered our free services, complimentary services, and ma'am will Certainly, be sir. generous. Thank you so much. And ma'am would be generous in giving package to chartered accountants or DTBA members. Sure, Any sir. other Sure. Pleasure will be questions? mine, sir. मैम आई डू हैव अ क्वेश्चन. हाँ जी. मैम प्रॉपर डाइट भी ले लो, सब कुछ हो जाता है, वेट भी कंट्रोल में रह जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हो रहा है वो हेयर लॉस में हो रहता है एंटायरली फुल ईयर में. किस सीजन में मैम? तो उसका क्या बेसिक रीजन क्या रहता है? डाइट इम्प्रॉपर है या एनवायरनमेंट ही है इसका मेजर रीजन? पता है क्या डियर, इट इज, देयर आर वेरियस मल्टीपल फैक्टर्स अगेन इन दिस. पहली बात तो आप अपने आप चेकअप्स कराइए. इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपना थायराइड लेवल चेक कराइए, विटामिन डी चेक कराइए, विटामिन B12, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लोग नहीं चेक कराते हैं वो है आपके फेरेटिन लेवल्स. जो हमारा फेरेटिन है दैट इज योर आयरन डिपॉजिट. सो अगर वो आपका फेरेटिन लेवल कम है, दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस क्यों आपका हेयर फॉल होता है. दूसरा मैम, हम लोगों का लाइफस्टाइल. आई थिंक यू आर आल्सो अ प्रोफेशनल, सो stress level, that is one of the major things. And diet, of course, it plays a major role. आप क्या खा रहे हैं, कंसिस्टेंटली खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं. क्या होता है ना, हम लोग अच्छा चीजें खाने शुरू करते हैं पर उसको कितनी देर अपने प्रैक्टिस में रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 3 दिन, हफ्ता भर. बट रिमेम्बर, अगर आपको एक अच्छी स्किन चाहिए, एक अच्छा हेयर चाहिए, जो आप आज से 1 महीना 2 महीना 40 डेज जो आप रेगुलर खाना खाएंगे, वो 3 महीने बाद जाके आपकी स्किन में, आपके हेयर में उसका इफेक्ट आएगा. सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद ईटिंग राइट फूड, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैम व्हाट इज द मेजर सोर्स फॉर द प्रोटीन, मतलब फॉर हेयर्स, कि हम कहते हैं ना हेयर के लिए प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. मैम हेयर के लिए जो बेस्ट प्रोटीन होता है वो है बायोटिन. ओके. एंड उसके मैम एंड ओमेगा. देखिए, अगर आप वैसे देखिए तो हमारे नट्स में, हमारे सीड्स में, ठीक है. एंड इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन तो फिश में आ गया, ठीक है. एंड देन यू कैन इवन फोकस ऑन योर थिंग्स लाइक ऑयल, जैसे आपका सेसमे ऑयल हो गया, आपका कोकोनट ऑयल हो गया. अगर आप अपना खाना इन ऑयल्स में भी बनाए, पीनट खाएं, ये सब चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं फॉर अ गुड हेयर. थैंक यू सो मच मैम. यू वेलकम मैम. Ma'am, another question we had from Mr. Rupinder Thanji. Sir is asking, ma'am, please guide us about the impacts of frozen food, especially for kids. Again, वो बात हुई जो मैंने पहले कही थी कि जो चीज जितनी फैक्ट्रियों के यहाँ से होकर आएगा, प्रोसेस्ड फूड इज. कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी. तो जैसे मैंने पहले बोला था कि जितना हम प्रोसेस्ड फूड लेंगे उतना वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. The same is with the packaged food. चाहे वो आपका ग्रोसरी स्टोर में जो फूड,
वो. It is not good for either child or for you. तो ये एक कॉन्सेप्ट आया है जो बाहर से आया है, वेस्टर्न कंट्रीज से. उनके पास टाइम नहीं है. They don't have help. They don't have joint families, right? There everybody is working in the family, so they take out shortcuts. उनके shortcuts चलते हैं कि खाना नहीं बनाना, frozen food लाओ, माइक्रो में गरम करो, खा लो. हमारे इंडियन एंड दैट इज हमारे यहाँ पे फैमिली जॉइंट फैमिली है, 2-3 है. हेलो. Anji ma'am, you are audible. Yeah. So any other questions, anybody? Ma'am, last question is from Ranjana ma'am. Your views about intermittent fasting. Intermittent fasting is something very good. I am totally approving this concept, but then understand intermittent fasting should be done with your circadian rhythm. Circadian rhythm means the timing of your body. हमें अपनी जो बॉडी है उसके टाइमिंग्स के हिसाब से अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए. द बेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइमिंग इज कि आप अपना डिनर 6 से 7 बजे खत्म कर लीजिए और उसके बाद अगले दिन सुबह 7 बजे या 8 बजे अपना खाना खाना शुरू करें. हफ्ते में अगर 3 बार या 4 बार भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ले बाय की, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि अंडरस्टैंड दैट द टाइम पीरियड of 9 o'clock से लेके 4 Ma'am, your voice is breaking. in the We are not morning. able ये to- Ma'am lost the connection again. Maybe she is still showing online. Yeah. Can you hear me? साक्षी अन्विता जी हैं अभी ऑनलाइन और शी इज ऑफलाइन. सर शो तो हो रहा है मैम का. हाँ जी, I'm here. हाँ जी. Yeah, so we were talking about intermittent fasting. So it is one of my favorite subjects. So as I said, I don't know आप लोगों ने मेरी कितनी बात सुनी, but intermittent fasting is very good for our body. क्योंकि बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेस्ट चाहिए होता है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू मिलता है. और आप इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को अगर अपनी बॉडी की सर्कैडियन रिदम के हिसाब से करेंगे, दैट मीन्स जब आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए उस टाइम पे अगर आप बॉडी को कुछ खाने को नहीं डालेंगे और उस टाइम पे आप सोएंगे, तो वो आपके लिए बेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है. आइडियली यू शुड फिनिश योर डिनर 6 to 7 and next day you should be having your food after 7 or 8 o'clock, because during this time, if I talk from 9 o'clock up till 4 o'clock, melatonin हार्मोन निकलता है जो हमको सुलाता है और उसके बाद एक ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे टिश्यूज, हमारे सेल्स
को रिपेयरिंग करते हैं, उनको ग्रो करते हैं. ड्यूरिंग द टाइम 1 AM से लेके 3 AM तक हमारा लिवर अपना काम करता है, जिसमें वो टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और फ्रेश ब्लड बनाता है. So this is the ideal time when we should be doing an intermittent fasting, जिसमें हम खाना ना खाएं और अपनी बॉडी का जो रिपेयरिंग का काम है वो करने दें. सेकेंडली, उस टाइम पे हम लोग सोए ताकि all the processes of repairing takes place rightly. So it is a good intermittent fasting is a very good technique which you should be doing in a week. You should do at least 2 to 3 times in a day intermittent fasting of at least 12 hours, which is convenient. We all can do it very, very easily. Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. So nice of you. It was an enormous session. May I request Maninder ma'am to kindly summarize the session and propose a vote of thanks on behalf of District Taxation Bar Association, Direct Taxes Ludhiana. Thank you so much, Jaswinder sir. Thank you. Yes, to start with, I'll say that the entire session was very informative, and indeed it was, and super interesting. I can see how many questions were coming, and ma'am covering, ma'am Anvita Chatwal ji, we really thank you for you being here. Very well said, ma'am. I'll definitely try to stay away from A, B, C, as you mentioned. Also trying to manage my intakes of gur or shakkar, as you said that they serve equal calories. Today's session was bursting so many myths and creating an awareness about our health, which is so essential. I hereby, on behalf of DTBA Ludhiana, organizer for the event, and entire team, let me call it as a fraternity, together on the behalf, extend a hearty vote of thanks to our eminent speaker for gracing our event and sharing us important facts and findings rather. Thank you so much. Thank you. The pleasure was all mine. Thank you so much. I would like to express my sincere thanks for you to give an excellent coverage, and also we cannot forget special thanks to our torch bearers, senior mentors, family mates who have joined today as an audience, who actually made the session more interactive. Special thanks to the great audience also. Finally, coming to an end, I would like to take an opportunity to place on record our hearty thanks to our worthy chairman, C.A. Jaswinder sir, and entire executive team, working 24/7 for full dedication to uplift our professional colleagues. Thank you so much, sir, for making this happen. It's a very enriching and enlightening session. Thank you once again, Anvita ma'am. Thank you, sir. Thank you, Maninder ji. Thank you, Anvita ma'am. मुझे अनविता जी को मैं पिछले 3, 4, 5 साल से continuously देख रहा हूँ. इनकी पिक्स, इनकी वीडियोस भी देखते रहता हूँ. मुझे इनको देखकर 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, मैं इनको सुनाना चाहूंगा. सोच के रिगार्डिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने सोच को बदला है. सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे. नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे. सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे. नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे. कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे. तो मुझे ये लगता है अगर हम दिशा बदल लेंगे अपनी सोच की, तो मिथ्स हमें पता चल जाएंगे, दे आर रियली मिथ्स, और फैक्ट्स जो विल गेट एनलाइटेंड अबाउट द फैक्ट्स. एंड मैम हैज बीन रियली ग्रेट and generous in giving her views about myths and facts. मेरे mind से personally I am very thankful on behalf of DTBA as well, क्योंकि मुझे कई चीजों का, काफी नई चीजों का पता चला है. तो we hope to carry on that spirit. Somehow हमारा regular day रहता है Friday, तो आज Thursday की वजह से, otherwise हमारे participants कुछ कम रह गए. Maybe some other time we'll have some more session as per the convenience of members and ma'am. So thank you very much, ma'am. So nice of you. It's great being you with us, and we hope to have some session in the coming time. Also, I can see Subhash Chan ji also seeing his video.
previously he was on non-video mode. So thank you all. Thank you very much. Thank you, Hariom ji, I could see, and all our DTBA members. We are Subhash Jain ji, हमारी जो newsletter team है, उसको lead कर रहे हैं, and it is coming well within time and with all the dynamic outputs. And the study circle team is going fine. And आज हमारा co-curricular activities का session था. तो may I request, अभी बहुत थोड़े से member रह गए कि जिन्होंने अपनी डायरेक्टरी एंट्री जॉट फॉर्म की नहीं करी वो काइंडली कर दें. सो वी आर कमिंग अप विद द डायरेक्टरी. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू मैम. सो नाइस ऑफ you all of you. Thank you ma'am. Thank you, sir. We sign off for the day. Thank you.